جب سن یسوع کی آواز لیتا ہے. ہاللویا. پریز دی لارڈ. لوگ یسوع مسیح ناصری کے زندہ و برکت جلالی لسانی لافانی لا تبدیل لا متبدل جو برتر سب سے عظیم سب سے اعلیٰ سب سے سندر سب سے خوبصورت یسوع نام میں آپ سب لوگوں کو میری طرف سے سلام. پریز ہاللویا. آئے خدا کے کلام کے لیے زوردار تالیاں بجائیں. پریز گاڈ. ہاللویا. اور کلام اقدس کو میرے ساتھ آج کھولیں. دیکھیں کہ بائبل مقدس کے اندر سے مقدس رسولوں کے اعمال اس کا 3 باب دیکھیے گا. جی نکال لیا. 3 باب اس کی پہلی آیت ہم پڑھیں گے. اگر کوئی بہن پڑھ سکے تو پڑھ لیں. اور پلیز کائنڈلی مائک رکھیں اپنے پاس کی مائک. اگر مائک کھول دیں تو اچھی طرح سے کوئی بھی شاید حوالے ساتھ ساتھ ریڈ کرنے پڑے. بہت سارے لوگوں نے پہلے بھی اس کو سنا ہوگا. سٹوریز میں بھی یہ حوالہ ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے. خداوند کے وقت یعنی تیسرے پہر ہیکل کو جا رہے تھے. آمین. کلام مقدس میں یہ بات سے بات کرتے ہیں. آمین. Today our topic is time. آج کا جو ہمارا مضمون ہے وہ ہے وقت. بائبل مقدس کے اندر ابھی بیٹی نے تلاوت جو آپ لوگوں کے سامنے کی اس میں پڑھا کہ پترس اور یوحنا دعا کے وقت تیسرے پہر ہیکل کو جا رہے ہیں. کون سے وقت؟ تیسرے. اب یہاں پر انہوں نے جو وقت ہے جو ٹائم ہے اس کو مد نظر رکھا ہے. لکھا ہے پترس اور یوحنا دعا کے وقت. اس کا مطلب یہ کہ ہیکل کا ٹائم تھا وقت تھا جب وہ دعا کرنے کے لیے جا رہے تھے. اب مقدس پترس رسول جو ہے وہ بڑے ہیں اور یوحنا رسول جو ہے عمر میں چھوٹے. لیکن ٹائم ٹیبل دونوں کا سیم ہے. ایسا نہیں کہ پترس نے بلایا اور یوحنا انتظار کر رہا ہو. یوحنا نے بلایا اور پترس انتظار کر رہا ہو. نہیں. دونوں ٹائم پر وقت پر خدا کے گھر جا رہے ہیں. لکھا ہے کہ پترس اور یوحنا دعا کے وقت جب دعا کا وقت ہو گیا تھا تو وہ ہیکل کو جا رہے تھے. اور آگے جب ہم پوری سٹوری کو پڑھتے ہیں تو وہاں پر پوری سٹوری ہمیں سمجھ میں آتی ہے کہ جیسے وہ ہیکل میں دعا کرنے جا رہے تھے اور جس دروازہ سے وہ داخل ہونے کو تھے اس دروازے کا نام تھا خوبصورت. دروازے کا کیا نام تھا؟ خوبصورت. وہ دروازہ خوبصورت کہلاتا. اب وہاں پر ایک پیدائشی لنگڑا جو تھا بیٹھ کر بھیک مانگ رہا تھا. وہ پیدائشی جنم کا لنگڑا تھا. وہ چل نہیں سکتا تھا. اب جو اس کے ریلیٹیو کہہ لیں یا اس کے گھر والے کہہ لیں یا اس کے ماں باپ کہہ لیں یا اس کے بہن بھائی کہہ لیں, جو بھی اس جنم کے لنگڑے کو چھوڑ کر گئے بڑی سیاست کے ساتھ, بڑی عقل مندی کے ساتھ, بڑی ذہانت کے ساتھ اس دروازے کے پاس چھوڑ کر گئے. جو دروازہ کون سا ہے؟ خوبصورت. اب خوبصورت کا مطلب یہ کہ وہ دروازہ اس طرح سے تھا کہ وہاں سے جو امیر ترین لوگ تھے, تو کہتے ہیں نا VIP دروازہ, پروٹوکول والا دروازہ, خوبصورت دروازہ, وہاں سے ایسے لوگ گزرتے جن کے پاس روپیہ پیسہ ہوتا, مال و متاع ہوتا, دولت ہوتی. اب وہ جنم کے لنگڑے کو وہاں پر بٹھا
उसको पता था अब लोगों ने आना है हैकल में दुआ करने के लिए और मैं उनसे भीख मांगूंगा। और लिखा है कि जब दुआ के वक्त पतरस और यूहन्ना वहां पर से गुजर रहे थे तो उस भिखारी जन्म के लंगड़े ने क्या किया, उसने अपनी तवज्जो उन दोनों की तरफ लगाई। उन्होंने लंबे लंबे चोगे पहने हुए थे और बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा है कि उसके दिल में ये बात आई, शायद ये भी कोई शख्स बहुत अमीर तरीन शख्स है, ये आज मुझे बहुत सारा सोना चांदी मालो मता रुपया पैसा देकर जाएंगे। और काम 10 के अंदर लिखा जब वो भीख मांग रहा था तो उसने उनकी तरफ मतवज्जा होकर उनसे मांगा। और जब पतरस और यूहन्ना ने उस जन्म के अंधे को और लंगड़े को देखा कि वो वहां पर बैठा है तो उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा रुपया पैसा तो हमारे पास नहीं है, सोना चांदी हमारे पास नहीं है, मगर आज हम तुझे ऐसी चीज देकर जाएंगे जो आज तक तुझे किसी ने ना दी हो। हालेलुया। बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा है कि पतरस रसूल ने उससे कहा कि उठ और चल फिर। उसने अपना दाहिना हाथ उसकी तरफ बढ़ाया और उस जन्म के लंगड़े को पकड़ा, उसका दाहिना हाथ पकड़ा और उसे उठा खड़ा किया और वो उछलता कूदता हुआ भागता फिर रहा था। हालेलुया। आज का जो हमारा टॉपिक है, आज का जो हमारा मशहूर है वो है वक्त। अगर खुदा के लोग, खुदा के बंदे वक्त पर खुदा के घर ना आया जाया करे, ना दुआ करे वक्त पर, तो वो अपनी जिंदगियों से किसी को हील नहीं कर सकते, किसी को शिफा नहीं दे सकते, किसी की जिंदगी के अंदर अजीब और जलाली काम नहीं हो सकते अगर वो वक्त पर दुआ न करे। तो लिखा है आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, वक्त, टाइम। आज का टॉपिक हमारा है वक्त। और यहाँ पर पतरस और यूहन्ना वक्त को मद्देनजर रखते हुए कहां पर जा रहे थे, हैकल में दुआ करने के लिए। कैसे दोस्त है आज के दोस्तों का हाल ये होता है, अगर कहीं लड़ाई झगड़ा करना हो तो वो वहां पर वक्त पर पहुंच जाते हैं। कॉल कर दी, दोस्त मैं फलां जगह पर, मैं बस पहुंच रहा हूं, मैं बस आ गया, पहुंच गए। वक्त पर लड़ाई झगड़ा करने के लिए इकट्ठे हो जाते हैं, लेकिन दुआ करने के लिए वक्त पर इकट्ठे नहीं होते। यहां पर लिखा है कि वो वक्त पर दुआ करने जा रहे थे जब हैकल में दुआ का वक्त था। तो बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा है कि वक्त, खुदा भी वक्त की पाबंदी करता है। बाइबल मुकद्दस के अंदर अगर हम और हवाला जान देखें तो बाइबल मुकद्दस में यूहन्ना की अंजील उसका 5वां बाब और उसकी 4थी आयत में लिखा है, क्योंकि वक्त पर खुदावंद का फरिश्ता हौज पर उतरता और पानी को हिलाता और क्या होता, जो उस हौज में पहले उतर जाता वो शिफा पा जाता। अब खुदा ने वक्त पर फरिश्तों की भी ड्यूटियां लगा रखी। अब वो फरिश्ता जो था, जो हौज के पानी के ऊपर उतरता, पानी को हिलाता, वो भी वक्त का ख्याल रखता है, वो भी टाइम को मद्देनजर रखता है। वो भी देखता है कि अब मेरा वक्त हो गया है, मैं जाऊं और जाकर पानी को हिलाऊं ताकि आज जिसकी शिफा मुकर्रर है उसकी शिफा उसको मिल जाए। वक्त को मद्देनजर रखना जो है वो हमारी जिंदगी के लिए बहुत जरूरी है। हम अक्सर औकात कहते हैं जी गोरे कहते बड़े पाबंद हैं, ऐसी है। हम अक्सर औकात ये बात कहते हैं कि बाहर के ममालिक के जो लोग हैं, फॉरेनर लोग जो हैं, वो वक्त की पाबंदी करते हैं। और बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा है कि वक्त को गनीमत जानो, यानी कि वक्त एक ऐसी नेमत है कि कलाम अक़दस कहता है कि इस वक्त को गनीमत जानो
کیونکہ ہنوز دن ابھی پورے نہیں آئے. ہمیں وقت کی پابندی کرنی بہت ضروری ہے. اگر خدا وقت کی پابندی کر رہا ہے, خدا وقت کی پابندی کرتا ہے, ہاں جی, بڑی کاٹ آواز نکل رہی, ہاں جی آسر بھائی, کرتا ہے, زوردار تالیاں بجائے کے لیے بھائی کے جائیں گے. خدا بھی وقت کی پابندی کرتا ہے, میں نہیں کہتا, خدا کا کلام کہتا ہے, بائبل مقدس بیان کر رہی ہے. اگر آپ مقدس شموئیل نبی کی کتاب اس کا پہلا باب دیکھیں, اس کا پہلا باب اور اس کی 20ویں آیت کو دیکھیں تو وہاں پر لکھا ہے, اور ایسا ہوا کہ وقت پر حنا حاملہ ہوئی اور اس کے بیٹا ہوا, اور اس نے اس کا نام سیموئیل رکھا. اب یہ حنا جو تھی یہ بانجھ تھی, اس کے پاس اولاد نہیں تھی. یہ ساری سٹوریاں جو ہیں آپ نے سنی ہوئی ہیں, لیکن ان سٹوریوں کے اندر جو چیز میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں وہ ہے وقت. وہ کیا ہے؟ وقت. خدا اپنے لوگوں کی زندگی کے اندر اس کے وقت کے مطابق جو ہے وہ کام کرتا ہے. بائبل مقدس کے اندر لکھا ہے کہ خدا تحمل کر کے اپنے سارے کام اپنے وقت پر پورے کرتا ہے. خدا وقت کی پابندی کرتا ہے. تو پھر ہم انسانوں کو وقت کی پابندی کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے؟ کرنی چاہیے. آج سارے بھائی یہاں پر بیٹھے ہیں, جاب کرتے ہیں, سب بہتر طور پر جانتے ہیں, ہو سکتا ہے کچھ بہنیں بھی جاب کرتی ہوں, ان کو بھی اس بات کا علم ہے کہ جب وہ ڈیوٹی پر جائیں تو اگر ڈیوٹی پر وہ لیٹ ہو جائے یا ٹائم پر نہ پہنچ سکے تو کچھ کمپنیز کے رولز ایسے ہوتے ہیں, وہ ان کو چھٹی کروا دیتے ہیں, گیٹ سے باہر بھیج دیتے ہیں, دروازہ بند کر دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ بھائی ٹائم جو ہے وہ اوپر ہو گیا, آپ کی ڈیوٹی کا ٹائم یہ تھا مگر یو آر لیٹ, آپ لیٹ ہیں, آپ وقت پر کام پر نہیں پہنچے. کچھ کمپنیوں کے اندر اس طرح کا رول ہوتا ہے, اگر آپ 3 دن لیٹ گئے تو پھر آپ کی ایک چھٹی کٹ جائے گی. مختلف کمپنیوں نے, مختلف اداروں نے وقت کی پابندی کو مد نظر رکھتے ہوئے رولز نکالے ہیں. ہم انسان ہوتے ہوئے ان رولوں کو اپنی لائف کے اندر فالو کرتے ہیں. کیوں؟ کہ ہماری گاڑی نہ کٹ جائے, ہمیں واپس نہ بھیج دیں. لیکن لکھا ہے پترس اور یوحنا دعا کے وقت کہاں پر تھے؟ ہیکل. تو ہمیں بھی جب سنڈے میٹنگ, سنڈے سروس, اتوار کی عبادت ہو, ہمیں بھی وقت کا خیال رکھنا چاہیے, وقت پر ہمیں چرچ میں آ جانا چاہیے. ٹیوزڈے ہیلنگ میٹنگز جب شروع ہو وقت پر ہمیں خدا کے گھر میں آ جانا چاہیے, کیونکہ خدا اپنے فرشتوں کی ڈیوٹیاں لگائے ہوتا ہے کہ میرے بیٹے میری بیٹیاں اس وقت میرے حضور چھپتی ہیں تو جا ان کو برکت دے, ان کو بلیس کر, ان کو ہیل کر. خدا کا پاک روح بھی اپنے وقت پر آ کر انسانوں کی زندگی کے اندر کام کرتا ہے. اگر آپ پیدائش کی کتاب کے اندر دیکھیں تو وہاں پر بھی آپ کو اس کے 18ویں باب اور اس کی 14ویں آیت کے اندر ملے گا کہ کیا خداوند کے نزدیک کوئی بات مشکل ہے. موسم بہار میں موئنگ وقت پر میں تیرے پاس پھر آؤں گا اور سارا کے بیٹا ہوگا. یہ خدا کہہ رہا ہے اپنے بندہ ابراہیم سے. خدا اس کو وقت دے رہا ہے, اس کو ٹائم دے رہا ہے کہ موئنگ وقت پر جو وقت میں نے مقرر کر دیا ہے اس وقت پر تیری بیوی کے ہاں بیٹا ہوگا. خدا وقت کو مد نظر رکھتا ہے. اگر ہم وائس کی کتاب اس کا 3واں باب پڑھیں تو اس کی پہلی آیت سے ہی شروع ہو جاتا ہے. وہاں پر ہمیں ملتا ہے ہر چیز کا ایک موقع اور ہر کام کا جو آسمان کے نیچے ہوتا ہے ایک وقت ہے. ہر ایک کام
हंसने का एक वक्त है और रोने का भी एक वक्त है, गम खाने का एक वक्त है और खुशी करने का भी एक वक्त है, दरख्त लगाने का एक वक्त है और लगाए हुए को उखाड़ने का भी एक वक्त है, बीमार होने का एक वक्त है और शिफा पाने का भी एक वक्त है। खुदा ने वक्त मुकर्रर कर दिए हैं हम इंसानों की जिंदगियों के अंदर। अगर हम वक्त को गनीमत जाने, अगर हम वक्त को अपनी जिंदगी के अंदर अपने टाइम टेबल को ठीक कर ले, तो मैं समझता हूँ हम हर एक अपना काम जो है वो अच्छे तरीके से और वक्त पर कर सकते हैं। हालेलुया। अजीजों, बाइबल मुकद्दस इवन दैट, ये इतने हवाले और भी बाइबल मुकद्दस वक्त के तल्लक से हमें बहुत सारी तालीम देती है। आप सोच रहे होंगे कि सीजन जो है वो क्रिसमस का चल रहा है, वक्त क्रिसमस का चल रहा है और भाई वक्त पर टॉपिक रख के कलाम सुना रहे हैं। तो आए एक और हवाला देखेंगे बाइबल मुकद्दस के अंदर से, मुकद्दस लूका की अंजील उसका 2 बाब और उसकी 6 आयत। जी बहन जरा पढ़ दे जरा। खुदा हमारी जिंदगियों के अंदर हर काम वक्त पर करता है। जी उसकी 6-7 आयत पढ़ रहे, 2 बाब की 6-7 आयत गौर से सुनिएगा। जब वो वहाँ थे तो ऐसा हुआ कि उसके वाले अमल का वक्त आ पहुँचा। जब वो वहाँ थे, कौन वहाँ थे? मुकद्दसा माँ मरियम और उसके जो फियोंसी थे, हस्बैंड थे, मुकद्दस यूसुफ। लिखा है जब वो वहाँ थे तो क्या हुआ? ऐसा हुआ कि उसके वाज़े हमल का वक्त आ पहुँचा। आगे क्या लिखा जी? और उसका पहलौठा बेटा पैदा हुआ और उसने उसको कपड़े में लपेट कर चरनी में रखा, क्योंकि उनके वास्ते सराय में जगह न थी। क्योंकि उनके वास्ते सराय में जगह न थी। बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा है जब वो वहाँ थे तो ऐसा हुआ कि उसके वाज़े हमल का वक्त आ पहुँचा। मुकद्दसा मरियम, माँ मरियम जो थी वो उस वक्त हामिला थी और उनकी वो जो डिलीवरी का टाइम था वो आ चुका था, वो वक्त आ पहुंचा था। और लिखा है कि वो ऐसी जगह पर थे कि जहां पर उनके लिए जगह न थी। लिखा और उसने उसको कपड़े में लपेट कर चरनी में रखा, क्योंकि उनके वास्ते सराय में जगह न थी, क्योंकि वक्त पहुंच चुका था। लेकिन आज हमारे दिलों के अंदर यीशु के लिए जगह नहीं है, वक्त आ पहुंचा है, यीशु की पैदाइश हो चुकी है, वो चरनी में आ चुका है, लेकिन सराय में जगह न थी। इसका मतलब हमारी जिंदगी के अंदर यीशु की जगह नहीं है। अगर हम वक्त की पाबंदी नहीं करते तो खुदावंद यीशु के लिए हमारे दिलों में जगह नहीं है। अगर आपके पास वक्त है, दुआ करने का वक्त है, कलाम पढ़ने का वक्त है, अपने आप को खुदा के हजूर रखने का, तो फिर इसका मतलब है कि आपके पास उसके लिए जगह है। वरना लिखा है कि उन्होंने उसको चन्नी में रख दिया जहां पर भैंसे चारा खाती है। यीशु को कपड़े में लपेट कर वहां पर रख दिया, वो पराली लपेट के खुली में वहां पर, क्योंकि सराय में उनके लिए जगह न थी। आज क्या हमारे दिलों में यीशु के लिए जगह नहीं है? जगह है। अगर जगह है तो फिर वक्त की पाबंदी जो है वो बहुत जरूरी है। बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा 10 गवारियों की मिसाल खुदावंद यीशु मसीह ने दी। खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि 10 गवारियां थी और वो गवारियां 10 कलीसियां थी। अब हुआ क्या कि लिखा है कि दूल्हे का वक्त आ पहुंचा, दूल्हे का वक्त आ पहुंचा, दूल्हा आ गया। अब जो चुस्त थी, जिन्होंने टाइम की पाबंदी की थी, जिन्होंने वक्त को मद्देनजर रखा था, जिन्होंने वक्त पर अपनी मशकों
अपनी मशलें जला दी थी, जिन्होंने वक्त पर अपने आप को रूह कुद्दस से भर लिया था, जिन्होंने वक्त पर अपनी आंखें खोल ली थी, जो वक्त पर जाग रही थी, लिखा है कि जब दूल्हा आ गया तो जो 5 चुस्त थी वो भागकर दूल्हा के साथ शामिल हो गई, लेकिन जो सो रही थी, जो वक्त की कदर नहीं करती थी, जो वक्त की पाबंदी नहीं करती थी, वो सो रही थी, वो हुक्रा रही थी, वो बेखौफ थी, उनकी जिंदगी के अंदर कोई खुदार यीशु के लिए जगह न थी, क्योंकि वो वक्त की पाबंदी नहीं करती थी। और लिखा है कि जब दूल्हा आया वो उन 5 कवालियों को, उन 5 कलीसियों को जो चुस्त थी, जिन्होंने अपनी मशला के अंदर तेल भरा हुआ था, जिन्होंने अपनी रूह को जगाया हुआ था, जिन्होंने अपनी आंखें खोली रखी थी, जब दूल्हा आया तो उन्होंने उन 5 को यीशु ने अपने साथ लिया और वो अंदर चली गई, और जो 5 सुस्त थी वो आकर दरवाजा नॉक कर रही है, दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो, हम अंदर आना चाहती है, लेकिन वक्त जो है वो हाथ से निकल चुका था। वक्त हाथ से निकल चुका था। आज हम भी अगर उस वक्त को मिस कर देंगे, वक्त को छोड़ देंगे, वक्त की पाबंदी नहीं करेंगे, तो हम भी बाहर रह जाएंगे। अगर वक्त की पाबंदी करेंगे तो हम यीशु के साथ उसकी बादशाही में शामिल हो जाएंगे। हालेलुया। वक्त की पाबंदी जो है वो जरूरी है। जब हमारे पास वक्त होगा हम खुदा यीशु मसीह के लिए भी वक्त निकालेंगे, नहीं तो फिर एक ही होएगा, सुबह उठते तो मतलब गिला अपनों के बारे जुती पढ़ाई पढ़ो, साइकिल से काम जाओ। नो टाइम फॉर प्रे, दुआ के लिए टाइम नहीं है, यीशु के लिए टाइम नहीं है। बीवी को बोलो खाना बना लो, जल्दी जल्दी बनाओ, टाइम नहीं है, जल्दी कर खाना बना, अब गैस नहीं आ रही थी करो, ओके बाय टाटा। अगर वक्त पर उठे होंगे तो शायद गैस भी आ रही होगी, और टाइम से हम अपने खाने पकाने का भी काम करेंगे। हालेलुया। होता है ऐसा सारे घरों में, हमारे घरों में भी ये सारा सीन चलता है। अगर हम वक्त की पाबंदी करेंगे तो सब कुछ एवरीथिंग जो है वो सेट हो जाएगा। आज से कोशिश करें वक्त पर आए, ताकि हम वक्त पर इबादत को खत्म कर सके। अपनी अपनी कौन वक्त की पाबंदी करेगा? अगले मंगल वक्त की पाबंदी कौन करेगा? वक्त पर आएंगे। हालेलुया। आज किसी आप भी वक्त पर आएंगे, लेट आइए, मेरी इसलिए याद लेट आइए, वैसे बात भी थोड़े से लेट थे। हालेलुया। सानिया बहन वक्त की पाबंदी जो है वो बहुत जरूरी है। वक्त की पाबंदी करनी है, क्योंकि जब टाइम आएगा फिर सारे काम स्टार्ट बच जाए। कपड़े भी टाइम पर प्रेस, खाना भी टाइम पर, सुबह अपने आप को प्रॉपर तैयार करने टाइम पर। और मैं ईमान रखता हूँ कि आप दुआ भी टाइम पर कर लेंगे। यूहन्ना और पतरस दुआ के वक्त दुआ की जगह पर। हालेलुया। हमें भी दुआ के टाइम चर्च में संडे हो या मंगल हो, कोई भी मीटिंग हो, टाइम पर हमने अपने आप को खुदा की हजूरी में लेकर अगर वक्त की पाबंदी करेंगे तो हम कामयाब। गोरे ऐसे ही कामयाब। हालेलुया। क्योंकि वो वक्त की पाबंदी करते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। खुदा आप सब लोगों को बहुत ज्यादा बरकत दे। अपने